What is the importance of the teachings of Christ? तो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा की क्या महत्व The teaching है? of Jesus Christ is what changes and transforms my life. और प्रभु यीशु मसीह की वो शिक्षा है, वो बात है, मेरे जीवन को परिवर्तित करते हैं, मेरे जीवन के लिए अनिवार्य It है। is only the teachings of the Lord Jesus Christ will transform you and change your life. और वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा ही आपको जीवन को Amen. परिवर्तित करके बदलेंगे। Wrong teachings गलत शिक्षाएं and teachings that are from human wisdom जो मानुषिक ज्ञान और बुद्धि पर आने वाली शिक्षा will not transform the lives of people. मनुष्य की जीवन कभी बदलेंगे नहीं, परिवर्तित नहीं करेंगे। We are going to look at next a few minutes about the role of the Holy Spirit in the teaching ministry of the church. और आगे की कुछ क्षणों में हम इस विषय पर विचार करेंगे जो कलीसिया को सिखाने की जो उस विषय पर पवित्र आत्मा की क्या भूमिका है। Teaching and learning. और सिखाना और सीखना। Teaching is for learning, isn't it? और जो सिखाए इसलिए जाते कि ताकि हम So सीखें। in this chapter he is talking about that. और You know, what do we have to learn? और इस अध्याय में पौलुस ने कहा हमें सीखना क्या है, Deep things of God. और परमेश्वर की गहरी बातें। What does that understand? I mean, learning means और उसको सीखने की क्या चीज है, understanding. और उसको समझना है, Understanding. और समझना है। And how do we have to understand? और हमें इसको कैसे समझे, It is by the Spirit of God. और ये Hallelujah. पवित्र आत्मा की द्वारा This is समझे। what we are going to look at this morning. और यही बात हम थोड़ी देर के लिए देखें। Last week we talked about being filled with the Holy Spirit. पिछले हफ्ते हमने बात किया, तब हमने कहा कि परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो And जाओ। I believe that we have a deep desire in our heart to be filled with the Holy और मैं Spirit. आग्रह करता हूं हमारे हृदय के अंदर एक गहरी इच्छा है कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। Hallelujah. हालेलुया। We briefly mentioned a few things, which I may be repeating today, but we did not focus much about this area of learning and teaching and learning by the direction of the Holy और Spirit. पिछले हफ्ते हमने इस विषय पर थोड़ी सी हमने विचार किया, शायद मैं इसको दोहराऊंगा कुछ बातें, लेकिन इन जो बातें जो पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए जाना, सीखना, इस पर हम कम बातें करते हैं और समझते हैं। In the last discourse of Jesus Christ in Gospel of John chapter 14, 15 and 16, और प्रभु यीशु मसीह की आखिरी उस संदेश के दौरान जो यूहन्ना की पुस्तक उसकी सुसमाचार उसकी 14, 15 और 16वीं अध्याय में जो we all know that it is the last discourse of Jesus with the disciples. और चेलों के साथ मिलकर उन्होंने इन बातों की जो शिक्षाएं दी, समझाया गया। And one of the main theme in this discourse was about the introduction of the Holy Spirit. और इन जो उनकी जो संदेश में उनकी जो बातों पर मुख्य एक विषय पर उन्होंने बात की, वो पवित्र आत्मा की है। And the word he used for the Holy Spirit is translated into English as advocate. और जो शब्द जो पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल किए, जो अंग्रेजी में हमारी वकील यानी एडवोकेट ये शब्द इस्तेमाल किया गया। In our understanding, an advocate comes only when there is a need and he comes to the court or somewhere when you invited him. और एडवोकेट वो वकील तब होता है हमारी समझ में कि जब हमारी जरूरत पड़ी, जो अदालत जाना हो या कहीं और जाना हो, तब उनको बुलाते हैं, पैसा देते हैं, वो हमारे साथ रहता है। But the advocate will not be with you all the time, isn't it? लेकिन वो जो वकील है हमेशा हमारे साथ नहीं। But Paracletos is the one who is going to be with your side all the time. लेकिन पैराक्लीटोस जो पवित्र आत्मा के लिए जो बताया गया, वो हमारे साथ सदैव है, हमेशा है। You know, you look at chapter 14 verse, turn to Gospel of John chapter 14. और आप कृपया यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में He आइएगा। will live with you and he is in you. वो तुम में रहता है और तुम्हारे साथ हमेशा So होंगे। that is Paracletos. और यही पैराक्लीटोस। So when you are talking about the Holy Spirit, we must always understand that he is in my side, he is in me, and he is within me. और जब हम पवित्र आत्मा उस पैराक्लीटोस की बात करते हैं, वो मेरे साथ है और मुझ में है और हम में है, हमेशा साथ है। In chapter 14 verse 26, और 14 अध्याय की 26वीं वचन, so the first role of the Holy Spirit, Jesus in the discourse said that he will be with us. In fact, he said, you will not be orphans, you will not be alone. और जो पहली बात जो प्रभु यीशु मसीह जो पैराक्लीटोस यानी असहायक की बात कहा कि वो जब आएंगे तुम कभी अनाथ नहीं होंगे, अकेले नहीं There are होंगे। times that we feel we are alone, but understand this word, you are not alone. Holy Spirit is with you. कभी कभी हमें लगता है कि मैं अकेला हो गया, हम तन्हाई महसूस करते हैं, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए पवित्र आत्मा हमारे साथ The है। second thing he said, he will teach you everything और दूसरी चीज प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो तुम्हें सब कुछ सिखाएगा and remind you everything that I have taught you. जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया उसको स्मरण That's a दिलाएगा। great and important role of the Spirit. और ये पवित्र आत्मा की महत्वपूर्ण भूमिका है, योगदान है। And we will come back to that. This is what we are going to do it today. और ये इस पर हम वापस
वापस आएंगे, हम इसको इस पर करेंगे। And the third thing of the work of the Holy Spirit in 15 verse 26, और जो तीसरी जो बात है जो पवित्र आत्मा की, जो 15 अध्याय की 26 again the word advocate, parakletos is used there. बार बार ये शब्द सहायक जो शब्द इस्तेमाल The third role of the Holy Spirit, Jesus in his discourse said that he will be with you and he will testify about me. और तीसरी जो महत्वपूर्ण कार्य पवित्र आत्मा के विषय पर यीशु ने कहा वो ये है कि वो सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हें समझाएंगे जो मेरी विषय पर, जो मैं कौन हूं उसकी गवाही देगा। So we are looking at one of those things which is called the teaching ministry of the Holy Spirit this morning. और आज सुबह हम पवित्र आत्मा की जो सिखाने की जो बातें, उसकी भूमिका, उस पर हम बात कर What रहे did हैं। Jesus say? यीशु ने क्या कहा What did he teach? और वो क्या सिखाएगा? He will teach all things that I have taught you. और वो सभी Hallelujah. बातें जो मैंने तुम्हें सिखाया वो तुम्हें What do you सिखाएंगे। want to learn? अब क्या सीखना We चाहेंगे? only want to learn what Jesus has taught us. और हम वो सीखना चाहेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया। He will remind you all those और things. पवित्र आत्मा में उस पर याद दिलाएंगे। That's wonderful, isn't वो it? ये अद्भुत की बात है। Then in chapter 16, again he said he will guide you into all the truth. और 16वें अध्याय में उन्होंने कहा पवित्र आत्मा के विषय पर वो तुम्हें सारे सत्य पर ले चलेगा। In chapter 16, 12 and 13. और 12 और 13वीं पद है। He will guide you into all the truth. और वो सत्य की आत्मा आएगा, वो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। So the advantage of the Holy Spirit in this process of teaching and learning is that he will lead you only to the truth and the right thing and the correct teaching. और ये सीखने और सिखाने की ये दौरान इस प्रक्रिया में एक बड़ी फायदा ये है, वो कभी भी हमें वो रास्ता भटक कर इधर उधर लेके नहीं जाएंगे, पर हमें सत्य पर, सही मार्ग पर ले जाएगा। What is the importance of the teachings of Christ? प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा की क्या महत्व है? Why is it so important? ये क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए? Have you ever thought about it? क्या अभी काफी The आपने सोचा teaching इसके? of Jesus Christ is what changes and transform my life. और प्रभु यीशु मसीह की वो शिक्षा है, वो बात है, मेरे जीवन को परिवर्तित करते हैं, मेरे जीवन के लिए अनिवार्य है। It is only the teachings of the Lord Jesus Christ will transform you and change your life. और वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा ही आपको जीवन को Amen. परिवर्तित करके बदलेंगे। Wrong teachings गलत शिक्षाएं and teachings that are from human wisdom जो मानुषिक ज्ञान और बुद्धि पर आने वाले शिक्षा will not transform the lives of people. मनुष्य की जीवन कभी बदलेंगे नहीं, परिवर्तित नहीं करेंगे। It may looks good sometimes, कभी कभी हमें वो अच्छा तो लगता है very logic, और हमारी दृष्टि में, सोच में अच्छा very है, interesting for us. बड़ी रुचिकर भी लगता है We feel very good. और हमें बड़े उत्साह भी महसूस That is होता what है। everybody likes. और वो तो सभी को पसंद Isn't है। it? Everybody, you know, something that I like, I want to hear it. और जो मुझे पसंद है वो मैं सुनना चाहता हूँ। But I want to tell you, that will not transform the life of people. लेकिन मैं आपसे Hallelujah. कहना चाहूंगा वो आपके जीवन को बदलना जरूरी नहीं We है। want to know the purpose of the teachings of Jesus Christ. I will take you through that in the next few minutes. It is, summary, it is to change our life, leads to the salvation of our और आगे life. की कुछ क्षणों में मैं उस पर आपको लेके चलूंगा, लेकिन हम इस प्रकार समझे प्रभु की आत्मा की जो शिक्षाएं हमारे जीवन को बदल कर, नया करके परिवर्तित करेंगे। So wrong teachings were from the everything, not only today, even from the very beginning. और आज जो गलत शिक्षाएं आज की बात नहीं है, पहले से ही था। We have plenty today. और आज तो बहुत ढेर सारे हैं Every nook and corner. और हर कोने पर आप जाए तो मिल The जाएंगे। wrong teachings. और गलत शिक्षाएं Even in the first century it was और there. ये पहले शताब्दी में भी थे। If you look at when Paul is talking to the Ephesian leaders, और जब आप अगर देखोगे पौलुस ने इफिसुस की जो प्राचीनों से कहा, in Acts chapter 20 we read that. और प्रेरितों की काम उस पुस्तक की 20वीं अध्याय If you में read from verse 28 to 31, और 28 से लेकर 31वीं वचन, he is warning those leaders to be very careful about these wrong teachers. और उन प्राचीनों को पौलुस ने चेतावनी दी कि आने वाले समय पर झूठी भविष्यवक्ताएं, गलत शिक्षा देने वाले तुम्हारे बीच में होंगे। Where do these wrong teachers are coming? और ये गलत झूठी शिक्षक लोग शिक्षा देने वाले कहां से आ रहे हैं? What is their names? और उनका नाम क्या है? They are prophets. और उनका नाम कभी-कभी जो They are भविष्यवक्ता हैं, teachers sometimes. और कभी-कभी वो शिक्षक के रूप में, Their names are sometimes apostles. और कुछ समय पर उनका नाम प्रेरित है।
Their names are John, Peter, and all those kind of names. और उनका नाम जो जॉन, यूहन्ना, पतरस सब कुछ हो सकता They है, are among you. और वे हमारे बीच में। Not in Good News Church. गुड न्यूज चर्च की बात नहीं We are talking about the church of और the हम church. कलीसिया की जो जनरल जो बात कर रहे हैं वो कलीसिया के अंदर रहे What हुए। is the desire of these wrong teaching? इन लोगों की उद्देश्य Be मकसद क्या careful. है? Listen me carefully this मुझे morning. ध्यान से सुनिएगा। Their desire is to draw people after them. और उनकी उद्देश्य ये है कि लोगों को उनकी ओर खींचे, आकर्षित करे, Their own benefits, अपनी फायदा के लिए, their own desires, उनकी इच्छा के लिए, their possessions. और उनकी बड़े स्थान Their के लिए, money. उनकी पैसा के They लिए, have their own desires. और उनको अपनी एजेंडा है, अपने मकसद They है, throw people after them. इसलिए लोगों को अपनी ओर खींचेगा। How can they get people? और लोगों को कैसे ये कर पाएंगे? Only through wrong teachings. और ये गलत झूठी शिक्षाओं से। You understand this morning? आपको समझ में आ रही है? This is everywhere. और ये सब जगह पर है। And that is where the presence of the Holy Spirit is very important. और इसी समय पर प्रियो जाने की पवित्र आत्मा की शिक्षा और उनकी उपस्थिति कितनी अनिवार्य The है। presence of the Holy Spirit will guide you into all the right teaching, the truth of God. तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उनकी शिक्षा हरेक सत्य के मार्गों पर, सच्चाई की शिक्षाओं पर ले That चलेगा। will take you to the truth about Jesus और Christ. यीशु मसीह की सत्य की बातें वो हमें That will बताएंगे। talk about the depth of Jesus और प्रभु Christ. यीशु मसीह की गहरी गूढ़ That बातें वो will talk बताएंगे। about the sufferings of Jesus प्रभु यीशु Christ. मसीह की जो दुख की बातें वो That बताएंगे। will talk about the salvation that we receive through the Lord Jesus यीशु Christ. मसीह की क्रूस के द्वारा जो हमें मिली उद्धार की बातें That वो will कहेगा। talk about the future coming of Jesus आने Christ. वाले प्रभु की दूसरे Hallelujah. आगमन के विषय पर पवित्र आत्मा That कहेगा। will not simply only talk about money and fame and how you can become, rich in this world. और वो शिक्षा ये नहीं कि इस दुनिया में आप कैसे मशहूर हो जाएंगे, आपको श्रेय कैसे मिलेगा, पैसा कैसे मिलेगा, आप बड़े हो कैसे हो सकते, वो नहीं। When the Holy Spirit will come, He will always speak about me, said Jesus Christ. यीशु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा वो मेरी बारे में आपके सम्मुख में गवाही So देगा। how do we distinguish the right teacher and the wrong और teacher? एक गलत और शिक्षा और सही शिक्षा को हम परखेंगे Very कैसे? easily. बहुत आसान। If the teachers are taking you to the love of Jesus Christ, यदि शिक्षा और शिक्षा देने वाले आपको प्रभु यीशु मसीह और उनकी सत्य पर ले चलते हैं, to take you to the salvation through Jesus Christ, यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाले उद्धार की बातें कहते take हैं, you to the transformation of your life, आपकी जीवन की परिवर्तन की बातों कहते हैं, taking through the change in your life. आपकी जिंदगी में आने वाले बदलाहट के बारे में वो कहते हैं। Right teacher. उसको Hallelujah. हम कहते हैं सही शिक्षा। Right teacher. और सही शिक्षा That is from the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा की ओर से If है। somebody is only talking about the fame and position and money and blessings in this world, और यदि कोई इस दुनिया की आशीष है, बहुत भंडार और उसके विषय पर, पैसा के विषय पर अपनी खुद की बातें कहते हो, that is not from God. Hallelujah. पवित्र आत्मा की ओर से नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Jesus used to have even a little harder word. प्रभु यीशु मसीह कभी-कभी बड़े कठोर शब्द इस्तेमाल किए। Peter used the wolves to these और- wrong, the wrong teachers. और जब पौलुस ने यहाँ जो भेड़िए कहा गया For the wrong teachers. और उस गलत शिक्षा You know what Jesus said? यीशु ने क्या कहा मालूम In है? John chapter 10 and verse 10, और यूहन्ना 10 में he used the word thief. और उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया, वो है जो चोर है वो लोग। In John 10 verse 10. और यूहन्ना 10 The teachings of Jesus Christ is the fullness of life. यीशु मसीह की शिक्षाएं हमारे जीवन में बहुतायत की जीवन लेकर आएगा। And if anybody else doing something else, Jesus called them as thief. Their desire is to destroy and to make you complete destruction. और यदि कोई इसके अलावा कुछ बातें कहते हैं तो यीशु ने उनको चोर बुलाया है और उनकी एक ही मकसद है कि आपकी जिंदगी को सत्यानाश करे, खत्म कर दे। So the teachings of Jesus Christ is nothing but taking us into the plan of God for your life. और दूसरे शब्दों में कहा जाए प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा हमें परमेश्वर की बड़ी उस योजना की Hallelujah. ओर ले चलता I want you है। to turn to 1 Peter chapter 2. और मैं चाहूंगा कि हम पहला पत्रस उसके दूसरे अध्याय में It's आए। a very important portion Peter is talking about पत्रस here. एक महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ कहते हैं In chapter 2 verse 1 to 5, और दूसरे अध्याय की पहले आयत से 5वीं पद तक। what is he saying about it? और पत्रस क्या कह रहे He हैं? says, you must
crave for spiritual milk. और उन्होंने कहा कि वो आप उसकी लालसा करें, वो आत्मिक दूध, That's about learning, isn't it? और उसको कहते हैं सीखने। Even a child can know it. Craving for spiritual milk means talking about desire for learning. एक बच्चे भी ये बात समझ सकते हैं कि अगर हम आत्मिक बातों की लालसा करने की बात कहते हैं तो ये है कि हम उस शिक्षा पाने के लिए इच्छुक रहे, A desire for that learning. और इसके लिए एक आग्रह हो जाए। Why do you have that desire? आपको ये इच्छा क्यों होनी चाहिए? So that, verse 1, you get, rid yourself from malice, deceit, hypocrisy, envy, slander, and all those kind of things. और वो इसलिए आपको जरूरी है ये शिक्षा हुई इसकी लालसा करना, ताकि उसी से के द्वारा आप इस वैर भाव से, छल से, कपट और डाह निंदा इस तरह की बातों से बच रहेंगे। Why do we need a teaching? और हमें शिक्षा क्यों चाहिए? Hallelujah. Why do we need a teaching? क्यों चाहिए हमें? To get rid of from all these kind of things in और our ये life. सारी बुरी Hallelujah. आदतों से, बातों से बच के रहने के लिए हमें चाहिए। That is the way God is shaping our lives. और इस तरह परमेश्वर हमारे जीवन को आकार देते When हैं। we have this spiritual milk, जब हमारे पास ये आत्मिक दूध है, our life become clean from all these things. और हमारी जिंदगी इन सारी बातों से पवित्र शुद्ध रहता One है। more thing he said और एक और चीज पत्रस ने कहा in verse 2, end of verse, that you may grow up for your salvation. और दूसरे आयत की जो आखिरी भागों में उन्होंने कहा है कि तुम इसी उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। You will grow in your salvation. हम उद्धार में बढ़ते जाए। So spiritual teaching is important for us to grow in our और salvation. इसलिए आत्मिक शिक्षाएं Hallelujah. बहुत जरूरी है हमारे उस उद्धार में हम बढ़ने के लिए। Listen this. ध्यान से We सुनिए are not getting the spiritual teaching, प्रियो, यदि अगर हमें ये आत्मिक शिक्षाएं नहीं मिलते हैं, this spiritual milk, ये जो आत्मिक दूध की बात कर we रहे will हैं, not grow. हम बढ़ेंगे In नहीं। verse 5 he says, और 5वीं पद देखिएगा, as we continue to grow in Christ, और जैसे कि हम मसीह में बढ़ते हैं you become a living stone, और हम एक जीवते पत्थर के समान बनेंगे, and you will built into the spiritual house. और हम उस आत्मिक घर बनाए जाएंगे। This is the deeper things we are talking in 1 Corinthians. और पहला कुरिन्थी में हमने पढ़ा था ना परमेश्वर की गहरी बातें। Hallelujah. हालेलुया। When you are called by Jesus Christ, जब मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, that's only the beginning. और वो सिर्फ आरंभ है, That is the starting point. और वो बिल्कुल Are you with शुरुआत me? है। God has a greater plan, लेकिन परमेश्वर के पास बहुत बड़ी योजना है, a growth plan, एक बढ़ोतरी की प्लान, developmental plan. और हमारे जीवन की बढ़ोतरी की प्लान। And what is that plan? और वो उद्देश्य क्या है? We become living people. और Hallelujah. हम जीवते और जीवित लोग बन जाए, Divine life in us. और हमारे अंदर और ईश्वरीय स्वभाव हो। Use the word living stone. और उन्होंने यह शब्द इस्तेमाल किया, जीवित पत्थर। Hallelujah. आमीन। And then we are built into that spiritual house. और इसके बाद हम Hallelujah. उस आत्मिक घर बनते जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। And in verse 9 and 10, very familiar words. और उस अध्याय की 9 और 10 पद हम परिचित हैं। Amen. हालेलुया। How do we become the people of God? प्रभु के लोग कैसे बनते हैं? This process of teaching. और ये जो Hallelujah. शिक्षाओं की ये प्रक्रिया में This जाना, process of learning. और ये सीखने सिखाने की बातों This पर, process of accepting all these और things. ये प्रक्रिया जो सारी चीजें समझने This की, process of growth in me. हमारे जीवन में ये बढ़ोतरी की प्रक्रिया होनी I चाहिए। built into the spiritual house. और मैं इस आत्मिक घर में बनता जाता हूँ, I become the people of God. मैं परमेश्वर Hallelujah. के लोग बन Hallelujah. रहा हूँ। That is the purpose of God, my brothers and sisters. मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के उद्देश्य यही है। And what is his purpose? उद्देश्य, उनके मकसद क्या है? Make us the people of God. और उनका Hallelujah. एक ही मकसद है, हम Are you उनके happy समान this morning? बन जाएं। You are part of that group of God, और मैं group प्रभु of को people. धन्यवाद करता हूं क्योंकि हम Raise उस your hand. झुंड में पाए जाते हैं, We are in that temple of God. और हम उस परमेश्वर की मंदिर की एक We are ईंट हैं, part of that people of और God. हम उन लोगों में है वो निज प्रजा है, We become that living stone and we are in that spiritual house. और हम जीवता पत्थर बन गया, हम वो जीवते मंदिर बनाए जाते हैं। So teaching is nothing but to make us the people of God. और ये Hallelujah. शिक्षा और कुछ भी नहीं है और किसी के लिए नहीं, पर हम उनके समान उनके लोग बनते जाए। If you are not under the teaching, और यदि आप शिक्षा के अधीन में नहीं, if you are not guided by the Holy Spirit into this truth, और यदि पवित्र आत्मा के द्वारा आपको इस सत्य की ओर लेके नहीं जाते, we are not becoming the people of God. और हम परमेश्वर Hallelujah. के लोग नहीं बन रहे, We are not becoming the people हम of प्रभु God. के लोग नहीं बनते। Our name could be
be John and Peter, और हमारे नाम यूहन्ना और पतरस हो सकता or है, any other names of that और kind, इस तरह के कुछ और भी नाम हो सकता or है, any other activities that we are और doing हम it. कलीसिया की कई गतिविधियों में भी हो सकता है, But we are not becoming the people of God. लेकिन हम Hallelujah. परमेश्वर के लोग Are you with me? नहीं बन रहा Hallelujah. है। How can I become the people of God? मैं परमेश्वर की संतान लोग कैसे बनूं? When I allow myself to be under the Holy Spirit and receiving the teachings of Jesus Christ, which is divine, my life changes and I become the spiritual house and I am the part of the people of God. जब मैं परमेश्वर की आत्मा को अनुमति देता हूँ, वो परमेश्वर की आत्मा मुझे मेरे जीवन की बदलाहट के लिए, परिवर्तन के लिए उनकी शिक्षा की ओर ले चलते हैं, और उस प्रक्रिया में उस शिक्षाएं मुझे परमेश्वर के लोग बनाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We started with the word deeper things. और हमने एक शब्द से हालेलुया। शुरुआत किया, गहरी बातें, We गूढ़ are बातें। talking about this growth process. You need deeper things. और यदि Hallelujah. आपको बढ़ना है मजबूती से, आपको गहरी बात समझना Is that होगा। important? क्या ये महत्वपूर्ण है? Hallelujah. Read chapter 6 of Hebrews. और इब्रानी उसकी 6वीं अध्याय हम अब देखेंगे, Chapter 6 verse 1. 6वीं अध्याय की पहला वचन। It's a desire in God that we move to maturity and you know that kind of a completeness. और हमारी अंदर एक बड़ी इच्छा, एक लालसा होनी चाहिए कि हम उस सिद्धता की ओर बढ़ते जाए और परिपूर्णता की ओर बढ़े। That is God's desire. और ये प्रभु की That's what आग्रह। I said in Peter's language, to become the people of God, the spiritual house. और पतरस की भाषा में कहा जाए, हम परमेश्वर के लोग निज प्रजा बन जाए, वो आत्मिक घर बन जाए। How can this happen? ये संभव कैसे होगा? Read chapter 5 verse 14, और ये 13 and 14. और इब्रानी 5वें अध्याय की 13 और 14 पद In पढ़िए। Hebrews, in this language he said we have to have solid food. और जिस भाषा में इब्रानी के पत्र से हमने पढ़ा कि वो हमें अन्न की जरूरत है, Solid food. अन्न की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। Why do I need the solid food? और मुझे उस खाने की क्यों जरूरत है? Because I am in the journey to become the people of God. क्योंकि मैं उस Hallelujah. प्रक्रिया की, Hallelujah. उस यात्रा में Hallelujah. हूँ, उस परमेश्वर के लोग बनने की। So he says we need to move from the elementary things, the superficial thing, the beginning things. और इसलिए वो पत्री लिखने वाला कहते हैं, हम आरंभ की शिक्षाओं को छोड़कर हमें सिद्धता की ओर बढ़े। And why do I have to become mature? अब मुझे मच्योर, परिपक्व क्यों होना है? I become the people of God. ताकि मैं और आप परमेश्वर के लोग बन जाएं। It's very interesting in verse 14, he uses a term, the nature of this grown up people. और ये जो परिपक्व लोग हैं उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया 14 पद में, आप देखिए। Their nature, their character और उनकी स्वभाव क्या है? will be trained, trained to distinguish good and evil. और अच्छे और बुरे, और भले और बुरे की और जो पहचान हमारी इन अभ्यासों से, इन बातों से होती है। That is the difference between an infant and a mature, isn't और it? एक छोटे बालक या बच्चे और परिपक्व व्यक्ति में फर्क यही है। What is infant? और बच्चा क्यों है? When the parents tell them or the elders tell them, don't do it, they don't do it. और यदि माँ बाप कहते हैं या बड़े बड़े लोग कहते हैं ये मत करो, वो नहीं करते। But they don't know why I should do or I should not do it. लेकिन उनको मालूम नहीं है, बच्चों को जब कहा जाता है ये क्यों नहीं करना, ये क्यों करना है। If you ask the next question, they said, Papa, Papa told me. और Mommy told अगर me." आप उनसे पूछे, सवाल पूछे, तुम ये क्यों कर रहे हैं, तो आप कहेंगे, वो कहेंगे मेरे पापा ने मुझसे कहा। They are not capable of answering why I should not do और this. वो सवाल के जवाब वो नहीं दे पा रहे, तुम ये क्यों कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं। Many Christians are like that. आज मसीह लोग, कई लोग इस पर हक है, Why I should not do this? मैं ये क्यों नहीं करना चाहिए। Are you capable of answering why I cannot do this? और आप इस सवाल की जवाब देने के लिए निपुण है, सक्षम है कि मैं ये क्यों नहीं करना चाहिए। I cannot think like that. मैं उस तरह नहीं सोच सकता, I cannot go like मैं that. इस तरह जीवन नहीं बिता सकता, I cannot speak to that मैं person. इस तरह की बातें अपने मुंह से I नहीं will कह not go सकता, and sit there. मैं उस जगह पर नहीं बैठ सकते। Why? क्यों? He has no answer. उनके पास कोई जवाब नहीं। Only a mature person can say that. ये परिपक्व लोग ही कह पाएंगे। He can distinguish good from evil. और वो व्यक्ति भले और बुरे की पहचान Hallelujah. करते हैं, उसका फर्क समझते हैं। Hallelujah. Amen. How do we become mature?
और हम परिपक्व कैसे Are you बनेंगे? with me? Listen me. How do I become mature? हम मैच्योर और परिपक्व कैसे One बनेंगे? of the great preachers of history, his name is John Chrysostom. जॉन क्रिसोस्टम जो इतिहास के सबसे मशहूर प्रचारकों में He was एक asked था, this question. उनसे भी एक सवाल पूछा गया, How do I get it? मैं इसको पाऊंगा कैसे? He says, he was asked, how do our faculties become trained to distinguish good from evil? उनसे ये सवाल पूछा गया, हमारे शरीर की अंगों को इस तरह की अभ्यास कैसे दे ताकि हम भले और बुरों की How do I पहचान करें? know? How can I know what is right and wrong? और सही गलत मैं कैसे पहचान लूं? He said, उन्होंने कहा, by continual hearing and experience of the scriptures. और जो निरंतर परमेश्वर के वचन सुनने और उसके लागू करने से, Maturity comes only by doing. और जो परिपक्वता तब आती है उसको बार बार करते We हैं। grow in spiritual maturity only through regularly hearing and studying God's word and putting it into practice. और हम आत्मिक परिपक्वता में तब पहुंचेंगे निरंतर जब हम परमेश्वर के वचन सुनते और उसको अनुभव करते और उसको अपने जीवन में लागू करते हो। What is this mature teaching we are talking और about? ये परिपक्व शिक्षा की बात जो We कह are रहे हैं क्या है? talking about our relationship with Jesus और Christ. हम कह रहे कि प्रभु मसीह के साथ हमारी संबंध क्या Our है? unity with Jesus प्रभु Christ. के साथ हमारी एकता क्या है? That is the deeper things we are talking और about. वही है जो Hallelujah. गहरी गहरी बातें जो हम कहते We हैं। believe in Jesus. हम विश्वास तो करते We हैं, accepted Jesus. यीशु को हमने अपनाया भी, We took baptism. हमने बपतिस्मा भी ली, That is the elementary वो teaching. तो सब शुरुआत ही है। But the deeper things, लेकिन जो गूढ़ गहरी बातें Christ in me, प्रभु मुझ में है, I am in Christ. मैं मसीह में Hallelujah. हूँ, Jesus Christ in me and I in Christ. यीशु मसीह मुझ में और मैं उनमें हूँ, ये बातें। And I have the great desire to know Him and to know His sufferings. और मेरे पास वो इच्छा है कि मैं उनको और अधिक जानूं और उसके दुख में सहभागी And हो when I जाऊं। know Christ, जब मैं मसीह को और I began जानूंगा to practice that. और मुझे इसको अपने जीवन में लागू करना होगा। Comes to Philippians chapter 2. फिलिपियों की पत्री उसकी दूसरे अध्याय, Let's read verse 1 onwards again. और हम इसकी पहले आयत से पढ़ेंगे, Let's read verse 1 to 4. और हम एक से फिलिपियों की पत्री पहले दूसरे अध्याय 1 से 4। When we are united with Jesus जब हम Christ, यीशु मसीह में एक हो जाती we हैं, have the mind of Jesus हम Christ. यीशु मसीह की स्वभाव में उसकी मन में आ जाती And हैं। what is the mind of Jesus Christ? यीशु की स्वभाव He मन said क्या है? earlier, हमने पहले कहा unity, एकता, oneness, एक साथ होना, supporting each other. एक दूसरे की मदद There are करना, many things he said. No selfish interest, और उसमें अपने हित की बात नहीं, humility. और नम्रता, These are all the mind of Jesus और ये Christ. सब मसीह की मन है। That's what we see in Jesus, और isn't it? वही हमने यीशु में It देखा है। comes in every areas of our life. हमारे जीवन में भी ये सब पहलू में देखना Friends, चाहिए। why is it not happening in Christians? मित्रों, हम मसीहियों के जीवन में ये क्यों नहीं दिख रहे हैं? We have the Bible with us. हमारे पास बाइबल तो है, We follow all these things. हम ये सारे गतिविधियां, But why these changes are not coming? लेकिन हमारे जीवन में ये परिवर्तन क्यों नहीं हो रहे? We need to practice it. इसको हमें अनुभव और If लागू we करना keep it होगा। only as our theory, और ये थियरी में सीमित किया हमने, it will never be, help you to grow into maturity. अगर बस ये थियरी रह गया तो समझो हम बढ़ेंगे नहीं, परिपक्व नहीं बनेंगे। In 2 Timothy, Paul is saying these teachings will lead you to make you wise for और salvation. दूसरे तिमोथी में पौलुस लिखते हुए कहा कि ये शिक्षाएं तुम्हें उद्धार के लिए ज्ञान और ज्ञानी बना देगा। So he is telling them to continue what you have learned. और इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हें ये बात को निरंतर करते रहना You चाहिए। can read that verse later at home, 2 Timothy 3, 14 and 17, 14 to 17. और ये आप दूसरे तिमोथी तीसरे अध्याय की 14 से 17वें पद में पढ़ सकते He हो। says, continue in this teaching. उन्होंने कहा कि इसमें निरंतर लगे रहो, This will make you wise, और वो तुम्हें ज्ञानी बना देगा, and scripture will teach, rebuke and correct. और जब तुम इस बात पर बुद्धिमान हो जाएंगे, पवित्र शास्त्र तुम्हें उपदेश, समझाना, सुधारना और धार्मिक शिक्षा देगा। Hallelujah. हालेलुया। What do the scripture, what do the teaching, give us? और ये शिक्षाएं परमेश्वर के वचन हमें It क्या देता rebuke है? us. और हमें वो कई बार उपदेश देता It है, corrects us. और हमें
ठीक कर देते हैं, And when we follow it, make us wise. और वो हमें बुद्धिमान बना देते Make हैं, us wise for salvation. और हमारे उद्धार के लिए बुद्धिमान बना देते Make हैं। us people who can make right and wrong easily. हमें उस तरह बुद्धिमान बन जाते हैं कि जो सही क्या है गलत क्या है उसकी परख You don't need समझे। somebody with you all the time not to do it. You don't need that kind of a guidance. और आपके साथ कोई बड़े लोग माता पिता हमेशा रहने के नहीं कि ये करो वो न करो, पर आप अपने आप में इसकी परख और उसकी समझेंगे। Hallelujah. Hallelujah. In the same 2 Timothy, Paul is warning them that in last days there will be these wrong teachers will come and destroy. और उसी पुस्तक में दूसरे तिमोथी में पौलुस ने कहा कि अंतिम दिनों में और ऐसे झूठे शिक्षक आएंगे, आपको सत्य से भड़काएंगे। And people will go after, the desires of their ears. It says to suit the itching of their ears. और वो कहते हैं कि जो मनुष्य को अपने कान को कुचली देने वाले, जो अच्छा सुनने वाली बातों की ओर वो मोड़ेंगे, सत्य को छोड़ देंगे। Chapter 4 verse 3, 2 Timothy. Listen me this morning. मेरे मित्रों सुने We अध्याय need से। to be aware about it. हम उसके बारे में जागरूक रहें, Don't think that it is not around us. और ये मत सोचिए हमारे बीच में नहीं है, And these days of, it is coming everywhere. और ये चारों ओर आ चुके हैं, Things that you would, like you. और जो आपको अच्छा लग रहा है That's called itching of your और ears. इसने कान की कुचली देने वाले, Helping you understand. Helping you feel good. और आपको बस अपने जो भावनाओं में बहकाते हैं वो। Our social media is full of that. और हमारी सोशल मीडिया इससे भरा हुआ है, YouTube, open it. और आप इसको बस एक खोल दीजिए, Preaching after preaching. और YouTube में और अन्य जगहों में शिक्षाएं It's so प्रचार, sad. There are people going after that, not even want to come to the church. और वो बहुत जो दुख की बात है, जो लोग हैं जो कलीसिया में आने नहीं चाहते वो उनके पीछे चले जाते हैं। Pastor, we get a good sermon there. लोग कहते हैं पासवान वहां से अच्छे संदेश सुन रहे हैं, You haven't seen that pastor. और आपने कभी उस पासवान को सुना नहीं, देखा That नहीं, pastor have never known about you. और आपके बारे में उनको कोई जानकारी There नहीं, is no relationship. आपके साथ कोई रिश्ता नहीं। You avoid the church, you avoid your pastors, you avoid your teachers and elders and everybody, and you live your life with that sermon. और आप अपने स्थानीय कलीसिया की लोग, एल्डर्स, पासवान जो संगति छोड़कर, जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं मालूम, जो कोई भी जो बकता है उसको सुनते हैं, And they simply said, God is going to bless you. और वो इतना ही कहते हैं प्रभु आपको आशीष देगा, Next week, God will give you अगले this. हफ्ते आशीष आने वाला And they है, will say a prophecy. और वो और जो This भविष्यवाणी is आप what, देते हैं। friends, what Timothy is, Paul is reminding Timothy. याद रखिए प्रियो, ये पौलुस और यूहन्ना और तिमोथी कहने वाला खरी उपदेश वो नहीं, Things that, suit you, things that, you like it जो to hear. चीजें आपको पसंद आता है, आपको बड़े उत्साहित करते, वो नहीं है खरी शिक्षा। There are many wrong teaching coming all around. और हमारी चारों ओर गलत शिक्षाएं, गलत A लोग, large group of people who are coming from West, they are working in our own context. और हमने कई बार सुना है जो अन्य देशों से आने वाला कई लोग जो हमारे चारों ओर काम कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। I don't know, you heard about a group called Mormons. और मॉर्मन करके एक जो संस्था है, आप उनके बारे में जानते हो? They come and knock at your door. They are around here also. और ये बीच में हमारे चारों ओर आपके दरवाजे खटखटाते हैं, They actually don't believe in this Bible. और वे लोग तो ये पुस्तक बाइबल में विश्वास नहीं, They have another Bible. उनके पास कुछ और पुस्तक You know है। what they are called? और आपको मालूम है They क्या are कहते हैं? called the saints of Latter-day Saints. और लैटर डे सेंट्स और अंत की दिनों की जो भक्त लोग कहते हैं, They are also called the church. No, the church of Lord Jesus Christ. और वे लोग अपने कलीसिया को भी प्रभु यीशु की कलीसिया बुलाते हैं, But they don't believe in Jesus Christ as God. और लेकिन यीशु परमेश्वर है ये बात वो विश्वास नहीं करते। And that kind of a group are walking and people are going at. और ये इस तरह की जो लोग जो चारों ओर घूमते हैं, हम उनके पीछे भी चलते हैं। You don't come to the church, you want to go after them. और आप तो कलीसिया, स्थानीय कलीसिया में आना नहीं चाहते, उनके पीछे When you घूमेंगे, go and sit in their small groups, और हम उनकी छोटे छोटे सभा में जाएंगे, you feel good. आपको अच्छा लग रहा है, They try to bless you. और वो आपको आशीष देगा। Friends, wrong teachers, मित्रों, ये बच के रहिए गलत शिक्षाओं से, thieves, और कृपया, wolves, और आपकी जो शिक्षा उन चीजों से, thieves and wolves. और वो कहते हैं चोर हैं, वो भेड़िए हैं, And they want to, in order to make you, destroy. वो आपको
फाड़ खाते हैं और फाड़ते हैं, नाश करते There is हैं। another group very active. और एक दूसरे ग्रुप में बहुत सक्रिय हैं, I don't know, you know about, they come from Korea. और जो वो लोग कोरिया से आते हैं It's called Mother God cult. और उनको मदर गॉड बुलाते हैं, वो परमेश्वर माँ है। You know, there is a lady there, there is a, you know, it's a female, her name is Jiang Jilja. और जियांग जिलजांग करके एक महिला है, वो उनके लिए महत्वपूर्ण है She is about 75 years old. और करीब 75 साल की है। She believes that she is the incarnation of God, the और- female incarnation of और वो God. विश्वास करती है, मैं परमेश्वर की वो देहधारी होकर आया हुआ स्त्री हूँ और व्यक्ति हूँ। They have a counterpart called Jesus Christ. और उनके पास वो कि इसके विरोध में एक व्यक्ति है जो वो यीशु विरोध नहीं है, है, उनके साथ में उनके साथ में है। उनके साथ, you know, say the son of God. और उनको जो परमेश्वर के पुत्र कहते He हैं, is also from Korea. और वो भी कोरिया से हैं। You will say that, Pastor, nobody will go after them. और आप कहेंगे कौन जाएगा पासवान उनके पीछे? 2.5 million people are their followers. और आपके मालूम 2.5 करोड़ से भी ऊपर लोग उनका पीछा कर रहा They है। are active in Bhopal also. और यहाँ भोपाल की शहरों Are you listening में me? Friends, they will, you know, they are like wolves, you know, destroy you. वो उन भेड़ियों के समान है, आपको फाड़ खाने के आते हैं। Hallelujah. Hallelujah. And why am I saying these all things? ये सारी चीजें मैं क्यों कह रहा हूँ? We have to be aware about it. हमें इससे जागरूक रहना चाहिए। You know, Paul was writing to Timothy and he says that be aware about it. और पौलुस जब तिमोथी को लिख रहा तो उन्होंने कहा इन चीजों से सावधान रहो। When somebody said there is something big going to happen, don't run after और that. कोई कहते हैं वहां बड़े बड़े चमत्कार है, बड़ी अच्छी चीजें हो रहा है, जो एकदम मत दौड़िए। Oh, we don't have time to come for our organized things, but we find some time and run over there. और हमारी कलीसिया में हमारी स्थानीय जगह पर आराधना के लिए, प्रेयर के लिए आने के लिए टाइम नहीं, पर उस भीड़ में जाने के लिए टाइम है। Where do they go? वो कहाँ जा रहे हैं? They go to this heavenly Jerusalem. They call them heavenly वो Jerusalem. लोग अपने आप में कहते हैं हम स्वर्गीय यरूशलेम जा रहे हैं। This mother God, ये मदर गॉड कहते the हैं bride of Christ, they call them. और वो कहते हैं परमेश्वर की दुल्हन हम हैं। Friends, we are in a very sad level situation. मित्रों, हम बहुत बड़ी बुरी दुख परिस्थिति में हैं। These things will not transform your life. ये चीजें आपको Hallelujah. जीवन को बदलेंगे नहीं, These things will not make you living stones. और ये आपको Hallelujah. जीता पत्थर नहीं बनाएगा। These things will not make you the people of God. परमेश्वर Hallelujah. की लोग नहीं बनाते वो, These will not lead you to salvation. और वो आपको उद्धार की बातें नहीं बताएंगे। How is the teaching ministry planned in the church? और कलीसिया के अंदर शिक्षाओं की जो प्रक्रिया कैसे है? You know, in the Great Commission, Jesus said, teach them to obey all what I have commanded. महान आदेश में Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि Hallelujah. उनको उन सारी बातें सिखाओ जो तुम्हें सिखाया, तुम्हें मैंने बताया। And teaching is taking place in the gathering. और जो शिक्षाएं जब हम इकट्ठे होते हैं हमारी ग्रुपों में होना चाहिए। And that's what in Acts chapter 2 we read it. और जो दूसरे अध्याय प्रेरितों की काम में हम They देखते हैं, gathered together. और वे इसलिए इकट्ठे हुए They learned the apostle जो teaching. प्रेरितों की Hallelujah. शिक्षा पाने के Are you लिए with वो me? हर Hallelujah. दिन इकट्ठे हुआ करते They थे। gathered together for apostolic teaching. वे प्रेरितों की शिक्षा पाने के लिए इकट्ठा हुआ। God has placed in the local church shepherds for the church. और जो स्थानीय कलीसिया में परमेश्वर के भक्तों को, शिक्षकों को, उपदेश देने वालों को नियुक्त They किया, are called the shepherds. और उनको हम देखरेख करने वाले If shepherds you are कहते हैं। not under a shepherd, यदि हम इस कलीसिया की लोगों की अधिकार पे अधीन में नहीं, if you are not under a shepherd, और आप ये चरवाहे के अधीन में नहीं, you are a wandering sheep. और आप जो भटकने वाले भेड़ हैं, What do you mean by wandering sheep? और आप भटकने वाले भेड़ क्या They है? will be seen today here, और आज तो आप उनको यहाँ देखेंगे, and tomorrow they will be seen another 50 kilometers away somewhere. और कल के दिन कहीं और जो 50 किलोमीटर दूर में कहीं रहेंगे, Third day in Punjab, और तीसरे बार वो पंजाब में कहीं, fourth day in Chennai. और चौथी बार चेन्नई में होंगे। They said, we are getting a lot of things, good और things. वो कहेंगे हमें तो बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें मिल रहा है। Friend, I don't see any change in your life. मित्रों, मैं तो आपके जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं देख रहा, You have the same angry. और आपके पास वो गुस्सा, You वो have, सब कुछ you है, have gone everywhere. और आप तो हर जगह घूम चुके हैं, You don't love the Lord Jesus. और आपको यीशु मसीह के बारे में नहीं मालूम। You are not in the ministry of the Lord हम Jesus. प्रभु की सेवा में नहीं हैं, You don't share the और gospel. आप तो सुसमाचार नहीं बताते, You talk only about these blessings that और comes हम on. उनमें से, उनकी ओर से सुनी उस आशीषों की बातें You are a बताते हैं। wandering sheep. और उन्हीं को कहते हैं भटकने वाले You जो can भेड़ हैं। easily taken away by the wolves. याद रखिए उन लोगों को जो आसानी से ये भेड़िया और फाड़ेंगे, खाएंगे।
In 1 Thessalonians chapter 5, Paul is saying, warning the church, we ask you, brothers, to respect those who labor among you. और जब पहला थिस्सलुनी उसकी 5वें अध्याय में पौलुस कहते हैं 12 और 13. These shepherds are given a work to do. और इन जो चरवाहों को कुछ काम दिया गया And their work is to take care of the sheep. और उनका काम है इस भेड़ों की देखरेख करें। It is true that there are a lot of shepherds do not take care of the sheep. और ये भी सच है कई जो चरवाहे हैं अपने काम नहीं कर रहे हैं। Testament also this is true. नया नियम में भी ये सच है। We have responsibility to take care. प्रियो हमारी जो बड़ी जिम्मेदारी है उसकी देखरेख करने की। Teaching is by the ministers who have been given this responsibility and the gift. और ये शिक्षा उन्हीं से हमें मिलती है जिनके लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है जो कलीसिया में उनको अपना In Ephesians chapter 4 we read about और it. एफेसियों उसकी 14 अध्याय में हम इसको पढ़ते You हैं। must read from verse 10 to 16. और 10वीं आयत से हमें पढ़ना है 4 अध्याय। It says Christ has given to us जो इस लिखा है प्रभु ने हमें इसके लिए नियुक्त करके दिया apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers. और उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला, रखवाले नियुक्त करके दिया। It is given by Jesus Christ. और Hallelujah. यीशु के द्वारा दी गई To equip the church. और ये Hallelujah. परमेश्वर की Are कलीसिया you following को इक्विप करने के लिए, मजबूत करने के we लिए must be part of that flock. और हमें उस भेड़ों में, उस झुंड में भागी होना चाहिए। And if you are under that flock, और यदि हम उस झुंड की एक look सदस्य at हैं, verse 14. तब हम बालक के समान मनुष्यों के ढग विद्या और चतुराई से इधर उधर भ्रम की युक्तियों से उछलने वाले और घुमाए जाने वाले नहीं बनेंगे। See, this is what happening. और यही हो रहा है। They are wavering from one to another. और एक जगह से दूसरी जगह This की is ओर right, that is उछलता है right. वो। Everything is right. और उनके लिए तो सब ठीक है, Everything right. सब कुछ सही Because है। they are not under this teaching. और ये इसी Hallelujah. कारण होता है कि वे लोग वो शिक्षा को नहीं Friend, जानते। when we believe the Lord Jesus, और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास when करते we हैं, take baptism, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, Lord added us to the church. याद रखिए, Hallelujah. प्रभु ने Are you हमें with me? कलीसिया में लाया। Hallelujah. Then in the church, और तब उन कलीसिया के द्वारा all these teachings of growth take place. और वो सारी शिक्षाएं जो हमारी बढ़ोतरी के लिए जरूरी हैं तब होता है। If you are a wandering sheep and run away, और अब अगर आप दौड़ने भागने भटकने वाले जो you can भेड़, never grow. आप कभी बढ़ नहीं पाएंगे। Colossians chapter 3 verse 16. कोलोसियों की पत्री उसके 3 अध्याय की 16वीं It is पद। not only the pastors, teachers, और ये सिर्फ ये नहीं है पासवान जो शिक्षक teach हैं, one another. एक दूसरे Hallelujah. को सिखाए जाए। Through songs and hymns and encouragement, everything in the body of और Christ. जब भी हम इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, हमारी गीतों के द्वारा, भजनों के द्वारा, बातों से एक दूसरे को उत्साहित करें, हम उसको बढ़ाएं। Hallelujah. Hallelujah. All these things under the guidance and the leadership and under the full lordship of our Lord Jesus Christ and the Holy Spirit that He has sent to और us. ये सब उन लोगों की अधीन में जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है और उसके ऊपर जो पवित्र आत्मा की उसके मार्ग निर्देश पर और उस पवित्र परमेश्वर की उस बड़ी योजना के तहत होना चाहिए। What we have, I'm coming back to 1 Corinthians chapter 2 verse 12. और मैं पहला कुरिन्थी दूसरे अध्याय की 12वीं पद, We will understand it. हम इसको समझेंगे। If we feel we are still infants, यदि हमें लगता है हम अभी भी बालक हैं, we need to grow. हमें बढ़ना होगा। What we need is solid food. हमें जरूरी है कि अन्न की, In order to have solid food, और उस भोजन के लिए you be submissive. You be part of the congregation. You be part of the gathering. You be under the shepherds of the Lord Jesus Christ. हमें जरूरी है उस झुंड में आप सहभागी हो जाए, उस जो नियुक्त किए हुए चरवाहों की अधीन में आ जाए, आप उन शिक्षाओं को पाए और उस संगति में रहें। When we are filled with the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो the जाते हैं Holy Spirit will lead us into it. और Hallelujah. पवित्र आत्मा हमें उसकी ओर ले Hallelujah. चलेगा।